بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل سدرا کی کہانیاں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں بہت کالی تھی، اس لیے سب میرا مذاق اڑاتے تھے، کوئی رشتہ نہ آتا۔ جب ایک دن ابا اپنے ساتھ ایک مزار پر لے کر گئے اور بولے کچھ دیر یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح سے رات ہو گئی اور ابا نہ لوٹے۔ اب میں پریشان ہو کر رونے لگی، جب دو عورتیں میرے پاس آ کر مجھے تسلی دینے لگی اور اپنے ساتھ لے گئی، لیکن میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ جو سنسان حصے میں لے جا کر مجھ پر گھونگھٹ ڈال دیا اور کہا کہ آج تیرا نکاح ہے، اور پھر زبردستی میرا نکاح کسی سے پڑھوا دیا۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ اٹھایا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ میرا نکاح تو… میرا نام شہزادی ہے، میں سکر کی رہنے والی ہوں۔ میری ماں نے میرا نام شہزادی تو رکھ دیا، لیکن سب میرا مذاق اڑاتے کیونکہ میں کالے رنگ کی تھی۔ میری اماں اور ابا کا رنگ گورا تھا۔ سب خاندان والے کہتے، کوثر کس کا چہرہ دیکھتی ہو جو ایسی بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ میرے تایا چچا کی بیٹیاں سب گوری چٹی تھی، لیکن میں کالے رنگ کی تھی، اور سب ہی میرا مذاق اڑاتے تھے اور مجھے تانے دیتے۔ اسکول جانا شروع کیا تو وہاں بھی ٹیچرز مجھے کالی کہہ کر پکارتی۔ میرا دل ہی کٹ جاتا۔ آج بھی اسکول میں میری ایک لڑکی سے لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم تو کالی ہو، تمہاری ماں کسی جھوپڑی سے اٹھا لائی ہوگی، اور میں افسردہ سی گھر میں داخل ہوئی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا جو کہ ابا کی ٹیکسی سے چلتا تھا۔ میں تھکی تھکی جب گھر میں داخل ہوئی تو میری اماں مختصر سے صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا پکایا ہے۔ وہ شاید پہلے ہی غصے میں بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، جتنے پیسے تمہارا ابا دیتا ہے، شکر کرو ایک وقت کی روٹی بن جاتی ہے، کھانی ہے تو جا کر کھا لو۔ تمہارا باپ کوئی لینڈ لاٹ تو نہیں ہے جو قیمہ بنا کر رکھتی۔ صبح کی روٹی پڑی ہے اور آلو کا سالن بنایا ہے، جا کر کھا لو۔ مجھے بہت رونا آیا۔ مجھے سب سے زیادہ رونا اماں کے رویے پہ آتا تھا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں کھانے مجھے آلو، روز آلو کھا کھا کے میں تھک گئی ہوں، اب دال ہی بنا لیتی۔ کتابوں کا کپڑے سے بنا بیگ جس کو میری اماں نے ہاتھ سے سلائی کر کے دیا تھا، میں نے بدتمیزی سے پھینک دیا۔ اس پر اماں نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میرے پیدا ہونے کے بعد میری اماں کے ہاں مزید اولاد نہیں ہو سکی۔ گھر پر بھی کالی بولتے اور کبھی منحوس بولتے۔ جب تک دادا تھے تو وہ میری طرفداری کرتے تھے، کہتے کیا ہوا، رنگ کالا ہو یا گورا، اللہ نے بیٹی تو دی ہے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ہمارا 2 کمروں کا مکان مزید چھوٹا لگنے لگا تھا۔ گھر میں سے ایک رونق ہی ختم ہو گئی تھی۔ ابا روز صبح نکل جاتے اور رات کو دیر سے گھر آتے۔ ہمارے محلے میں ایک سہیلی تھی جن کے گھر ٹی وی تھا۔ میں اس وقت 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی، وہ روز ہمارے گھر آتی، ہم گڈی اور گڈی کی شادی کرتے۔ پھر مجھے ٹی وی ڈرامے دیکھنے کا شوق چڑھ گیا اور میں روز ان کے گھر چلی جاتی، لیکن اس کی اماں پہلے گھر کا کام کرواتی، اور جب میں ٹی وی دیکھنے بیٹھتی تو وہ کہتی کہ صبح آنا، اب میرے بیٹے آنے والے ہیں، ان کا پسندیدہ ڈرامہ لگتا ہے، چلو نکلو۔ میرا تو دل ہی خراب ہو جاتا۔ اس کے بعد میں نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ ہمارے محلے کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے چھوٹی سی کریانہ کی دکان کھول رکھی تھی، وہ چھڑی کے سہارے چلتی تھی۔ کبھی میں روتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتی تو وہ مجھے ٹافی یا بسکٹ کا پیکٹ دے دیتی۔ میں بھی اس کے پاس بیٹھنے لگی۔ وہ واحد عورت تھی جو مجھے میرے نام سے پکارتی تھی، شاید اسی لیے کہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی یا پھر اسے ٹھیک سے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کہتی، جب میں جوان تھی تو میں بے حد حسین تھی اور میرے 2 بیٹے تھے۔ اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی، مجھے کبھی بیٹی مت دینا کیونکہ مجھے اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ خود میرا شوہر بھی شرابی تھا، روز شراب پی کر آتا اور مجھے مارتا تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور اپنے بیٹوں کو بڑی مشکل سے پالا۔ جب کام دھندے پر لگ گئے اور ان کی شادیاں کر دی تو پھر میں ان کو بوجھ لگنے لگی اور انہوں نے مجھے نکال دیا۔ تب میں سوچتی، کاش میری بیٹی ہوتی تو وہ مجھے سنبھال لیتی اور میرا خیال رکھتی۔ آج سے 20 سال پہلے اس محلے میں آ کر میں نے اپنا چھوٹا سا مکان بنا لیا اور اپنا گزر بسر کر رہی ہوں۔ تم بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کرو۔ تم دیکھنا، تمہاری شادی کسی شہزادے سے ہوگی جس کا بڑا سا گھر ہوگا اور وہ تمہیں ہر خوشی دے گا۔ میں ان کی بات ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ گھر آئی تو آج بھی اماں نے آلو انڈے بنا رکھے تھے، ابا بھی گھر پہ تھے۔ میں نے سالن پرے دھکیل دیا، مجھے ایسا کھانا نہیں کھانا، اب چاول ہی بنا لیتی۔ اماں کے بولنے سے پہلے ابا بول پڑے، تیرا نام شہزادی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نخرے بھی شہزادی والے کرو۔ تم ماں بیٹی میں ذرا بھی شرم اور شکر گزاری نہیں۔
अगर खाने को मिल ही गया है तो संभल कर खाओ, आपे में रहो। अम्मा ने अब्बा की बात का गुस्सा मुझ पर निकाल दिया और पूरी कुएं से कसकर थप्पड़ मारा। मैं पीछे को गिर गई और रोने लगी। अब्बा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते खाना छोड़कर घर से निकल गए। अम्मा बिला वजह अब्बा का गुस्सा मुझ पर निकाल देती। आजकल अब्बा घर पर पैसे नहीं देते थे और अम्मा हर वक्त सर पर बांध कर पट्टी लेती रहती। उनका सर दर्द ही नहीं जाता था। मैंने जब से ही होश संभाला था, रोज रोज की मार और मामूली बातों पर बेइज्जती तो मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। मुझे छुटकार दिया जाता। मैं चुपके चुपके अपनी गुड़िया से बातें करती और रोती। मेरी एक सहेली थी, उसकी अम्मा ने भी उसे रोक लिया, ये कहकर कि इस काली के साथ फिरोगी तो तुम भी काली हो जाओगी। अब मेरी कोई सहेली नहीं थी। अम्मा भी सारा दिन सर पकड़ के बैठी रहती और हाय हाय करती। अब्बा से कई बार कहा कि अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाएं। वो कहते कुछ नहीं होगा, सारे ड्रामे करती है, इतने से सिर दर्द से कोई मर तो नहीं जाएगा। अम्मा खुद ही सिर दर्द की गोलियां खाती रहती। अब अम्मा के बाल भी झड़ने लगे थे। 30 साल की उम्र में ही वो थकी थकी सी लगती। उनके चेहरे पर झुर्रियां गहरी होती जा रही थी और उनकी आंखें अंदर को धंसती जा रही थी। गहरे सियाह हल्के पड़ चुके थे। वो सारी सारी रात दर्द से तड़पती रहती। अब भी अब्बा कई के दिन घर ना आते। मेरा तो कोई ननिहाल भी नहीं था जिसके पास मैं अम्मा को ले जाती। एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अच्छी बेटी बनकर रहना, कभी भी अपने बाप के सामने मत बोलना। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर रखी है, उसमें से उनके 2 बच्चे हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा बाप हम माँ बेटी को क्यों बर्दाश्त नहीं, लेकिन तुम कभी इस घर को छोड़कर मत जाना, यहीं पड़ी रहना। ये दुनिया बहुत जालिम है, अगर इस घर से निकली तो बाहर की दुनिया तुम्हें नोच डालेगी। अम्मा मुझे सीने से लगाए रोती रही, कहती रही कि वो मुझे कोई खुशी नहीं दे सकी, तुम्हारी पसंद का खाना एक दिन भी नहीं बना सकी, लेकिन तुम्हारे पसंद की हेयर क्लिप मैंने खरीद ली थी। मेरी बेटी के बाल लंबे हैं तो वो बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। मैं सब बातें भूलकर अम्मा से हेयर क्लिप मांगने लगी। अम्मा को सहारा दिया और बेड के नीचे से एक संदूक निकालकर मुझे हेयर क्लिप पकड़ा दिया। अम्मा वही पुराने जमाने के बेड पर लेट गई जिसको रस्सियों से जोड़कर बनाया गया था और एक मोटा सा बड़ा गद्दा बेड पर डाल दिया गया था। मैं अपने बालों में हेयर क्लिप लगाने लगी और भागकर अम्मा को दिखाया। देखिए अम्मा, कैसी लग रही हूँ। वो मुझे ही देखे जा रही थी, लेकिन उनकी आंखें साकित थी। मैंने अपनी माँ का कंधा हिलाया पर वो आंखें नहीं झपक रही थी। मैं भागकर हमसायों के घर गई और वहां से खाला मजीदा और उनके शोहर भागते हुए आए। अम्मा के मुंह को पानी लगाया, छींटे मारे। इतने में उनका बेटा डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने बताया कि इनकी तो मौत हो चुकी है। मैं खाला को गले लगाती रोती रही। मेरा बाप तब आया जब अम्मा का जनाजा हो चुका था। उनके चेहरे पर दुख की कोई रमक नहीं थी। मेरी माँ को गुजरे 3 दिन गुजर गए जब अब्बा एक सांवले रंग की औरत और 2 बच्चों को घर ले आए और बोले कि ये तुम्हारी माँ है, आज से यही अपने घर में रहेगी। अब्बा ने न जाने कब से शादी कर रखी थी। उनकी बेटी मेरी ही हम उम्र की थी। वो गोरी चिट्टी थी और उसका 7 साल एक भाई भी था। मेरी माँ को न जाने कौन सा दुख आ गया जो जवानी में ही उनकी मौत हो गई। मैं अब्बा को ही कसूरवार समझती थी। उस औरत को आए 2 दिन हो गए। मुझे कहती, कब तक माँ का शौक मनाओगी, चलो घर के काम करो। मुझे तो अम्मा कभी घर के काम नहीं करने देती थी और जब से अम्मा फौत हुई मैं स्कूल भी नहीं गई थी। मेरा स्कूल बंद कर दिया और दूसरी माँ ने मुझे घर के कामों पर मारने लगी। उसकी देखा देखी मेरी बहनें भी मुझे काली बोलती और हुक्म चलाती। अब्बा रोज शाम को फलों से भरा शापर लाते। हमारे घर में गोश्त और चावल पकने लगे। मेरी अम्मा के होते कभी हमारे घर में एक फल भी नहीं आता था। अब्बा हमेशा कहते काम अच्छा नहीं चल रहा, कहाँ से लाऊं। अब इस घर में सब आ रहा था। मुझे अचार के साथ रोटी दी जाती, कभी बहाना बनाकर मुझे थप्पड़ मारती। उस दिन मुझे सजा के तौर पर भूखा सोना पड़ता। मेरे अब्बा ने जिससे शादी की वो भी मेरी अम्मा की उम्र की ही थी, जिसकी उम्र 30 साल होगी, लेकिन वो माँ के रूप में सख्त गिर और अजियत परस्त औरत थी। मुझे छोटी छोटी बातों पर मारती। मेरी अम्मा की हर चीज़ पर उसने कब्जा कर लिया था। मुझे खाना भी सहन में पड़ी चटाई पर देती। मेरा बाप आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर हंसता खाता। मेरा बाप मुझे ही भूल चुका था। मैं सर झुकाए प्लास्टिक की टूटी फूटी चटाई पर खाना खाती और रात को उसी चटाई पर सो जाती। जब ठंड बढ़ती तब वो मुझे किचन नुमा छोटे से डब्बे में सोना पड़ता। अब्बा ने वो किचन अब बनवाया था, वरना मेरी अम्मा ने तो कमरे के एक हिस्से में ही चूल्हा रखा हुआ था
और वो दरमियाने साइज का एक कमरा था। एक कमरे में हम सोते और दूसरे कमरे के 3 हिस्से कर रखे थे। एक में चूल्हा रखा था, दूसरे में स्टोर की सूरत देखकर अम्मा के जहेज की पेटी रखी थी, जिस पर बहुत से बर्तन रखे हुए थे। मेरी अम्मा बहुत सलीकामंद औरत थी। पैसे जोड़-जोड़ कर मेरे लिए कपड़े बनाती और जिस पंखे तले आज मेरी दूसरी माँ और उनके बच्चे सो रहे थे, वो भी मेरी माँ ने अपना पेट काट कर लगवाया था। अब्बा का तो कभी ध्यान ही नहीं गया। अब्बा ने घर में अपने बच्चों के लिए टीवी ला दिया, जिस पर वो सारा दिन इंडियन गाने सुनते, जिसकी आवाज़ बाहर गली तक जाती। वो माँ बेटी टीवी देखती और सो जाती और मैं सारे घर का काम करती। मेरी उम्र 17 साल हो गई थी। मैं घरदारी में माहिर हो गई। आज तक मेरी माँ बहन ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। मेरी सुतेली माँ कहती कि हमारा एहसान मानो जो तुम्हें इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना जैसी तुम्हारी शक्ल है तुम्हें एक दिन भी अपने घर में कोई बर्दाश्त न करे और घर से बाहर निकाल दे। मेरा सुतेला भाई घर लेट आता। वो गलत कामों में पड़ चुका था। उसने घर से पैसे चोरी कर लिए और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। मेरी सुतेली माँ और बहन ने मुझे बहुत मारा। मेरा भाई पास खड़ा रहा, उसे ज़रा भी तरस नहीं आया। मैं जानती थी कि पैसे उसने ही निकाले हैं, लेकिन खामोश रही और मेरा खामोश होना बहुत नुकसानदेह था। मैं अपनी हिचकियों को भी अंदर दबा लेती थी। मेरे जिस्म पर नील पड़ चुके थे और सारे जिस्म में दर्द था। इस बात का अब्बा से जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरी सुतेली माँ जानती थी कि पैसे उसके बेटे ने ही निकाले हैं। इन 17 सालों में एक बार भी मेरे बाप ने कभी मुझे देखा तक नहीं, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। मेरा बचपन सिर्फ 7 साल तक का था, जब तक मेरी माँ जिंदा थी। जब मेरी सुतेली माँ आई तो मेरा बचपन भी छिन गया और मैं एक मुलाजमा बनकर रह गई। एक बूढ़ी औरत थी जिसकी दुकान थी, वो भी पिछले साल अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरा अब कोई नहीं रहा था। मैं अपनी माँ को याद करती और रोते रोते सो जाती। जिस दिन लेट उठती, मेरी सुतेली माँ मुझ पर पानी डालकर उठाती, कभी मुझे थप्पड़ मारकर उठाती। मेरे बाप को भी मुझ पर तरस नहीं आता था। कभी पूछना तक नहीं गवारा किया कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। जब मुझे मेरे रंग के तारे दिए जाते, मुझे मारा जाता, तो मेरा दिल करता कि इस घर से भाग जाऊं। और मुझे अपनी अम्मा की बात याद आ जाती कि कुछ भी हो जाए, तुमने इस घर से नहीं निकलना। बाहर की दुनिया एक भेड़िए जैसी है जो तुम्हें नोच के खा जाएगी। अब्बा मेरे लिए रिश्ते देखने लगे। कई लोग घर आते, पर मेरी शक्ल देखकर इनकार कर देते। मेरे कपड़ों पर जगह जगह पैमर लगे थे। मुझे कभी नए कपड़े नहीं दिए गए। माँ बेटी अपनी उतरन दे देती। कभी रिश्ते वाले आते तो उनके पास मेरे खिलाफ अजीब अजीब बातें करती। वो मेरी बहन को पसंद करके चले जाते। वो थी ही गोरी चिट्टी। उसकी माँ कहती, मेरी बेटी को कौन सा रिश्तों की कमी है, अब पहले इस काली चुड़ैल को हमारे से उतार दे। कल को लोग कहेंगे सौतेली माँ थी इसलिए अपनी बेटी का रिश्ता नहीं किया। मेरे लिए कोई भी रिश्ता आता तो वो मुंह पर ही मुझे जवाब दे देते। मैं अपने अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती। जब बार बार आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाए तो रूह तो जख्मी होती ही है। और इन्हीं दिनों मेरे ताया अब्बा आए और बोले, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ हमारे साहब को एक केयर टेकर की ज़रूरत है जो उनके बेटे का ख्याल रख सके। वो तनख्वाह भी अच्छी देंगे। सबको लगता था कि कोई छोटा बच्चा होगा। अम्मा ने पैसों की बात सुनकर फौरन अब्बा से कहा कि इस कलमुही को ही भेज दे, 4 दिन हम भी सुकून से गुजारेंगे। अगले दिन ताया अब्बा और मेरा बाप मुझे उस बड़े से बंगले में छोड़ आए। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था और एक काम वाली थी जो कि खाना बनाती थी। मेरा दिल नहीं था यहाँ रहने का। वो काम वाली भी मेरे रंग पर हंस रही थी, कह रही थी छोटे साहब तो मेरे काम में नुक्स निकालते हैं, ये तो काली कलोटी है। मेरी आंखें आंसुओं से भर आई। वो बूढ़ा आदमी उठा और अब्बा को एक रकम अदा की। अब्बा की आंखें चमक उठी थी। अब्बा मुझे छोड़ के वहाँ मुझे रहने के लिए एक कमरा दिया गया जो उस घर की बैक साइड पर था। इसको अमीर लोग शायद क्वार्टर बोलते थे। मुझे अपने काम का नहीं पता था। जब भी वही काम वाली आई और खाना लेकर बोली, आज का दिन आराम करो, सुबह से तुम्हें मैं तुम्हारा काम समझाऊंगी। उस दिन खाने में बिरयानी थी। मैं खा रही थी। मेरी आंखें आंसू से भर चुकी थी। मैं खा भी रही थी और साथ साथ रो भी रही थी। उस दिन मैं चारपाई पर सोई और देर तक सोती रही। किसी ने मुझे नहीं उठाया। मुझे तो आज़ादी महसूस होने लगी थी। नौकरानी ने मुझे कुछ कपड़े लाकर दिए क्योंकि मैं घर से खाली हाथ आई थी। उसने बोला, छोटे साहब बहुत सफाई पसंद है, उन्हें वो मुलाजिम भी अच्छे नहीं लगते जिनके कपड़े गंदे हों। मैं कपड़े बदलकर उसी के साथ चली गई।
बड़े साहब के साथ एक लड़का था जो 20-25 साल का होगा। उसने मुझे सिर से पाँव तक घूरा। वो एक खूबसूरत नौजवान था। मैं सिर झुकाए खड़ी थी जब उस लड़के के दादा ने कहा, शहजादी, आज से तुम्हें सिर्फ शायान का ख्याल रखना है, इसके काम करने हैं, और इसके अलावा तुमने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाना। इससे पहले भी जो जो मुलाजमाएं यहाँ आई, वो मेरे पोते को छोड़कर खुद एंजॉयमेंट करती रहीं। मैं अब तक 10 नौकरानियां बदल चुका हूँ। इस बार तुम्हारे ताया ने बताया कि मेरी भतीजी है, जिसकी सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती है। मुझे उम्मीद है कि तुम शायान का ख्याल अच्छे से रखोगी। मैं बोल ही नहीं पा रही थी। वो लड़का मुझे घूर रहा था। इतना बड़ा घर भी मैंने पहली बार देखा था। मैं बार बार अपना चेहरा साफ कर रही थी। वो लड़का चुप बैठा था और उस दिन मैं उसके काम करने लगी। उसके साथ घर के पास ही बने पार्क में जाती। ये एक नई दुनिया थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे यहाँ कोई काली या मनूस नहीं कहता था। मुझे इस घर में रहते हुए 3 महीने होने वाले थे। अब्बा हर माह आता, पैसे लेता और चला जाता। एक बार भी मुझसे नहीं मिला, और ना ही मैं वापस जाना चाहती थी। शायद अब मेरे हाथ का बना खाना खाता। उसका हर काम मैं खुद करती। उसे जब कोई काम होता मुझे आवाज़ें देता। वो गुस्से का बहुत तेज था। कभी कभी चीज़ें उठाकर फेंकने लगता। एक दिन कुछ लोग उसके रिश्ते के लिए आए, लेकिन वो भी मेरी तरह ये कहकर ठुकरा दिया जाता कि टांगों से माजूर इंसान के साथ किसी की बेटी अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती है। शायान के दादा अबू बहुत परेशान थे। वो उनका इकलौता वारिस था। शायान और उसके माँ बाप एक ही गाड़ी में अपने बाप के घर आ रहे थे, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। सबको लगता था कि अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन शायान बच गया था, और वो अपनी टांगे खो चुका था। उसके दादा पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। शायान कई साल तो बोल नहीं सका, पर अब वो बोलने लगा था, और हद से ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। जिस लड़की से शायान की मंगनी हुई थी, वो भी ये कहकर छोड़ गई कि माजूर इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। आज भी जब लड़की वाले इनकार करके गए, तो शायान बालकनी में अपनी व्हील चेयर पर बैठा किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। मैं उसके लिए खाना लेकर आई। मैं आज तक उसे मुखातिब नहीं कर सकी, ना ही गैर जरूरी बात की, पर आज वो बोल रहा था और मुझसे कह रहा था, शहजादी, जब तुम्हारी माँ की मौत हुई तो तुम्हें किसने संभाला था? मैं उसकी बात समझ नहीं सकी और वहीं फर्श पर बैठ गई। मैं अपनी औकात में ही रहती थी। मैंने कहा, छोटे साहब, मुझे किसी ने नहीं संभाला। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, और भी बहुत कुछ उसे बताने लगी। वो मेरी तरफ देख रहा था। उस दिन 7 माह में वो पहली बार नॉर्मल अंदाज में मुझसे बातें कर रहा था और अपने बारे में बता रहा था कि कैसे उसे फुटबॉल का शौक था और वो दुनिया घूमना चाहता था। कितनी देर हो गई, खाना ठंडा हो चुका था। उसने हाथ भी नहीं लगाया, और ना ही मुझ में जुर्रत थी कि उसे कह सकती। मैं तो सर उठाकर उसे देखती तक नहीं थी। शायान के दादा कमरे में आए और शायान को मुस्कुराता देखकर आगे बढ़कर उसका माथा चूमा और उसका हाल अहवाल पूछने लगे। मैं भी कमरे से बाहर आ गई, जहाँ मेरा बाप मेरी बहन की शादी के लिए पैसे लेने आया था। मुझे देखकर किसी खुशी का इजहार किए बिना चाय पीकर पैसे लेकर चला गया। मेरी सुतेली बहन किसी लड़के को पसंद करती थी और अब उसी से शादी करने वाली थी, लेकिन लड़के वालों ने जहेज की लंबी लिस्ट अब्बा के हाथ में दी थी। अब्बा एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी पर कर्ज बढ़ा रहे थे। शायद वो जानते थे कि मैं यहाँ एक नौकरानी बनकर ही रहूं। मुझे मेरी बहन की शादी पर भी नहीं बुलाया गया, और ना ही मैं जाना चाहती थी। मेरी शादी नहीं होती तो क्या हुआ, कम से कम मैं यहाँ सुकून से तो रह रही थी। मैं शायान की व्हीलचेयर धकेल कर जा रही थी जब मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गई, लेकिन सड़क एक ढलवान की मानी थी। जैसे ही मैं नीचे गिरी, व्हीलचेयर तेजी से नीचे जाने लगी। मैं अपने जख्म की परवाह किए बगैर भागी, पर तब तक शायान गिर चुका था। मेरे पाँव से खून निकल रहा था और मैं शायान को नहीं उठा पा रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट में एक दर्द और एक अज़ियत छुपी थी। कभी कभी मुझे उस पर बहुत तरस आता था। कितना खूबसूरत इंसान और इस तकलीफ में है। कितना मुश्किल होता है खुद को ऐसे रूप में बर्दाश्त करना जिससे लोग खार खाते हों। मेरा रंग काला था पर मेरी टांगें सलामत थी। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती थी, कम अज़ कम मैं किसी की मोहताज तो नहीं। जब से शायान को देखा था, मुझे खुद की कदर महसूस होने लगी थी। मेरे हाथ पैर तो सलामत थे। शायान के पास सब कुछ था, लेकिन दुनिया देखने के लिए टांगे नहीं थी। वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा नहीं सकता था। हर वक्त उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी। शायान के दादा ने जब शायान के बाजू पर चोट लगी देखी, तो मुझे बहुत बातें सुनाई। मैं सर झुकाए सुनती रही। वो मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे पाँव पर चोट लगी थी, हाथों पर तो नहीं लगी थी। अगर मेरे पोते को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जान से मार देता। मेरा सर मजीद झुक गया
मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब्बा मुझे लेने आ गया। अब्बा को कुछ नहीं बताया। ये भी इन बड़े लोगों का एहसान था। अब्बा पूछते रहे कि इतने साल के बाद क्या हुआ जो उन लोगों ने तुम्हारी छुट्टी कर दी। मैंने कह दिया कि बड़े साहब ने अपने पोते के लिए एक लड़का रख लिया है जो उनकी देखभाल करेगा। तो बस छोटे साहब के छोटे मोटे काम करती थी। घर आकर मेरा दिल नहीं लग रहा था। शायद इस माहौल की आदत हो चुकी थी। मेरी सुतेली माँ का आज भी वही रवैया था। मेरी बहन शादी के दूसरे दिन घर आकर बैठ गई थी। उसके शोहर को मोटरसाइकिल चाहिए थी। मुझे वापस आए 3 माह हो चुके थे जब एक दिन अब्बा अपने साथ एक मज़ार पर ले गए और बोले कि कुछ देर यहीं ठहरो, मैं आता हूँ। वो फिर मुझे छोड़कर चले गए। सुबह से रात हो गई पर अब्बा नहीं आए। मेरे लिए जो रिश्ता आता वो किसी तलाक याफ्ता किसी बूढ़े का आता। अब तो सब घर वाले मुझसे तंग आ चुके थे। मैं अपनी सोचों में थी जब दो औरतें मेरे पास आकर मुझे तसल्ली देने लगी और अपने साथ ले गई, लेकिन मेरी टांगें कांप रही थी। जब सुनसान हिस्से में ले जाकर मुझ पर घूंघट डाल दिया गया और कहा कि तेरा निकाह है, और फिर जबरदस्ती मेरा निकाह किसी से पढ़वा दिया गया। मैंने घूंघट उठाया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरा निकाह तो शायान से हो गया था, जिसके घर मैं काम करती थी। शायान ने बताया, मुझे पता नहीं था जब दादा अब्बू ने तुम्हें निकाल दिया। कई माँ उनसे जिद करता रहा और वो टालते रहे। अब्बू ने नया रंग दे दिया कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। तुम्हारा बाप तुम्हें किसी के हाथ बेचने जा रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने मुंह मांगी कीमत उन्हें दे दी। मैं कुदरत के फैसले पर आंसू बहा रही थी। शायान ने कहा कि ये मत समझना, मैंने अपनी माजूरी का फ़ायदा उठाया है, पर मुझे लगा हम दोनों को बस एक सहारे की ज़रूरत है, और इसी वजह से मैंने ये निकाह किया है, ताकि कोई भी अब हम पर उंगली ना उठा सके। मैं शायान की व्हील चेयर को धकेलने लगी और उस दिन हम दोनों दिल से मुस्कुरा रहे थे।